Honorable Member Sri Anand Rao Arsu. As the top performing MP, may I start with you, sir? As a seasoned parliamentarian, I seek your valuable input on a very serious issue, the issue of frequent disruptions in the parliament affecting the proceedings. His Excellency, the Governor, talked about it, and there has been repetitive references to the grave issue that costs the Exchequer rupees 25 lakh for every hour lost. Adding to the statistics already shared, nearly 56% is lost during question hour due to the disruptions. When the British Parliament works for 150 days a year, the Indian Parliament works only for 60 to 70 days a year. Nearly 1/3 is lost in disruptions. There seems to be no accountability here. The erring members are not penalized. It is the good performance like you all who are affected by these disruptions. What is the solution? Can the Parliament, for example, pass a resolution to make it mandatory to work for a minimum of at least 100 days a year without disruption? What is your take on this, sir? हिंदी also? हिंदी में कर सकते हिंदी में बोल एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते मैं आपसे ये माइक I am answering the question. ठीक है अच्छा First of all, thank you very much for all you for honoring us. Totally, I agree with your question. So many times that resolution was passed that no disruption will be there in the Parliament. But unfortunately, it has not been done in Atalji's government. He had brought the resolution. Nobody will come in the way. Nobody will disturb the proceedings. But it is definitely happening and happening. And I am also of that opinion. Whenever we are there representing the country and our constitutional state too, our responsibility is that, and there are the procedures of the Parliament. There are the rules and regulations of the Parliament. According to the rules of the Parliament, we have each and every opportunity to put our problems, to put our questions, and to put our suggestions. But so many people doesn't understand it. And that's why these issues, so many issues are there, everyday issues are there. Sometimes state issues are there, constituency issues are there, some communities issues are there, and they are raging over there. And it is not good to. As per this suggestion, it should happen that I wish, but it is not happening. That is why I am also unable to do anything because I am the only member of the Parliament. Honorable Hansraj Ji, you are the whistleblower of the much talked about coal gate, and you are now the coal hero. Earlier in the 14th parliamentary session, the former Lok Sabha Speaker, Sri Somnath Chatterjee, had commended you as the role model for all MPs. To win such appreciation among 500 MPs from all across the country, that too from a veteran communist leader, is commendable. Of all the qualities that you possess, what was the outstanding quality that Sri Chatterjee recognized and appreciated in you to make that complimentary statement? Sir, it will be translated in Hindi and you can respond in Hindi if you prefer. माननीय सांसद नमस्ते कोयला घोटाला जो कहलाती है ना कोयला कोल गेट स्कैम उसके बारे में जो आप मुखबिर हैं ये विजिल ब्लोअर पैरेड वो सारा देश आपकी प्रशंसा कर रहा था उसमें एक्चुअली जो अखबार में न्यूज़ छपा था वो सब आपकी ही देन थी उसमें इसलिए आपका जो कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा
और एक बार सोमनाथ चटर्जी जो आपके दल के आपके पार्टी के नहीं हैं, फिर भी आपको एक बहुत प्रशंसनीय बातें कहा उन्होंने बताया कि आप एक आदर्श सांसद हैं, बहुत सारे सांसदों के बीच में आप एक आदर्श, इस तरह के एक सीनियर वरिष्ठ कम्युनिस्ट लीडर से इस तरह के एक प्रशंसनीय बातें मिलना तो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये आपको कैसे साबित हुआ कि इतने अच्छे गुणों के बाद आप एक सांसद के रूप में क्या क्या चेतावनी, क्या क्या चुनौतियां आपने सामना की और कैसे आपकी सक्सेस की क्या सीक्रेट है? मैं सबसे पहले प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और आईआईटी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और विशेषकर हम लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ जो इस स्टेट के गवर्नर सम्माननीय आदरणीय रोसिया जी और हमारे सम्माननीय कृष्णमूर्ति जी यहाँ उपस्थित हैं और उनके सामने हमें प्रस्तुत किया गया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सम्माननीय श्रीनिवासन जी और सभी जो उनके मेंबर्स हैं उनका हम धन्यवाद देंगे। हम सभी लोग के तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने लिया। क्वेश्चन मुझे जो पूछा आपने उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैं मानता हूँ। मैं मेरे बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात यहाँ चल रही थी, गवर्नर साहब जो कह रहे थे कि देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उसका सम्मान करते हैं। ये हमारा सम्मान नहीं है, हम लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा है। देश की आज़ादी के बाद जब देश को आज़ादी मिली तो मैं आप सब लोगों के सामने मेरे से सीनियर भी हैं आदरणीय कृष्णमूर्ति जी को मैं क्षमा मांगते ये कहूँगा कि देश में सबसे पहले अगर कोई काम अच्छा हुआ तो देश में डेमोक्रेसी की पुनर्स्थापना हुई है, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, वो यही है। और हम यहाँ पार्लियामेंट पहुँचते हैं, पार्लियामेंट अपनी लोकसभा को पुनः जीतने के लिए नहीं होती है। पार्लियामेंट में नेशनल इशू को अधिक महत्व दे के हम काम करते समय में जो नम्रता के साथ में हमें वहाँ काम करना है, जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, सबका पालन अगर हम काम करते रहेंगे तो हम सभी को, सोमनाथ जी सभी को हमारे बारे में ऐसा ही उल्लेख होगा, ऐसा समझता हूँ। और कुछ अच्छा काम करते समय अगर हमारे बर्ताव अच्छे रहे तो चेयर हमें हमारे बारे में अच्छा कहती है। मेरे अकेले के बारे में नहीं कहा गया है, कई बार इन लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि अच्छे एमपी है, चेयर कहती है, स्पीकर कहते हैं। मैं आपके बीच में इतना कहूँगा कि आपने कोल घोटाले के बारे में जो कहा है, कोल ब्लॉक एलोकेशन में जो अनियमितता हुई है वो देश के साथ धोखा था। ये मेरी नज़रों में ऐसा लगता है कि देश की नेशनल प्रॉपर्टी थी, वो तरीके से उसका आवंटन नहीं हुआ था। मैं कोल एंड स्टैंडिंग कमेटी मेंबर होने के नाते थोड़ा करीब से विषय को जानता हूँ और इस बात को लेके मैं बहुत खुशी होती है कि मेरे जो रिसर्च में मेरा जो अभ्यास हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, इतना ही नहीं तो अभी सीबीआई ने भी ये कहा कि इसमें अनियमितता हुई है। तो कुल मिलाकर सरकार ने भी ये माना है कि अनियमितता हुई, इसीलिए कोल मंत्रालय ने भी कुछ ब्लॉक कैंसिल किए हैं। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे आरोप पर मिलता है कि यहाँ गलती हुई है। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कहूँगा कि मैं ये मामला इसलिए हमने उठाया था कि देश में एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है उसमें यहाँ छुपा हुआ है। एक समय ऐसा था कि कोल इंडिया में 8 लाख से अधिक मैन पावर वहाँ वर्किंग करते थे, 8 लाख। आज जहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो 3.65 लाख मैन पावर वहाँ काम कर रहा है, जबकि कोल इंडिया इज ए वेरी बिग PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार का है। उसके बावजूद भी उन्हें ब्लॉक न देते हुए प्राइवेट कंपनी को देना एक बहुत बड़ा गलत काम था। करप्शन का आरोप नहीं लगाता मैं यहाँ पर, लेकिन देश के साथ में धोखा था। इसमें एम्प्लॉयमेंट है, इस एम्प्लॉयमेंट को देख के मैंने मामला उजागर किया था और उसमें सफलता मिलेगी, मुझे मिल रही है। कोल इंडिया को जिंदा करना पड़ेगा। कोल इंडिया एम्प्लॉयमेंट देती है, देश के लिए कोयला प्रोडक्शन करती है
और कोल प्रोडक्शन से पावर जनरेशन होता है, ये सभी को मालूम है। स्टील का भी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इस तरीके से कोल स्कैम है और इसमें सत्यांश है। मैं एक थोड़ा लोकसभा और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहूँगा। हम सब लोग ये धारणा है हमारी कि हम एक बार पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम 49% काम करते हैं और 51% हम काम करते हैं नेशनल हित में, नेशनल के लिए। यही डेमोक्रेसी है। हमेशा हमने सोचा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करें पार्लियामेंट में जाके, ये हमारे चेयर का अपमान हो सकता है, इसकी गरिमा कम होगी। इसलिए हमें नेशनल इशू को भी लेना पड़ेगा, लोकल इशू को भी लेना पड़ेगा। दोनों बातें हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या आज के हालत में है कोई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी नंबर 1 प्रॉब्लम है। सेकंड पे है या फर्स्ट पे है, दो बातें हैं, एक एग्रीकल्चर एंड फार्मर। दो बातों में देश बहुत नुकसान कर रहा है। आज की जो अर्थनीति है जो बनती है, बजट बनता है, वो थोड़ा सा हम उससे सहमत नहीं है। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कहूँगा, लेकिन गलत जा रहा है। देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश की जरूरत यह है कि यहाँ का हर व्यक्ति, लड़का पर हाउस, हर मकान में लड़का बेरोजगार है। हर 20 करोड़ यंग अनएम्प्लॉय है। देश युवाओं का देश है, ये कहा जाता है। मैं लोकसभा में बैठ के देखता हूँ कि देश युवाओं का ही देश नहीं है, बेरोजगार युवाओं का देश बन गया है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट के साथ में फार्मर सुसाइड करता है, इसके बारे में सरकार नहीं सोचती, ये दुख हमको लगता है। यहाँ पे अभी रिवर के बारे में, रिवर कनेक्टिविटी के बारे में जो बात चलती है, इरिगेशन इसका पर्याय है, जवाब है। और इसलिए लगता है कि बहुत से इशू है, नेशनल इशू और भी है, लेकिन ये इशू जो है इसमें बेरोजगारी, गरीबी की वजह से देश में मॉलन्यूट्रिशन है, कुपोषण है, गरीबी। अगर हर लड़के को, युवा को अगर काम मिलता है तो देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी। हर खेत को पानी मिलेगा तो देश की किसानों की भूखमरी, गरीबी समाप्त होगी। ये दो इशू पे हम लड़ते हैं, लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और ऐसे कुछ नेशनल इशू है कि जैसे कि अभी यहाँ पे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये हमारे छोटे छोटे देश हमारे बगल के हैं। इन लोगों का भी हमने विश्वास खोया है। मेरी सरकार तमिलों पे हो रहे अन्याय के बारे में ठोस कदम नहीं उठा पा रही, इसकी वजह क्या है? हमारी सरकार, बांग्लादेश के लोग आते हैं असम में, हमारे लोगों पे हमला करते हैं, हत्या करते हैं, सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है। नेपाल जो हमारा मित्र था, आधा हिंदुस्तान, नेपाल हमसे दूर जा रहा है, ये भी नेशनल इशू है। तो कुल मिलाकर ये सारे इशू को हम लोगों ने अगर नहीं समझा तो हम पार्लियामेंटेरियन नहीं है। हम पार्लियामेंटेरियन तभी है, ये सारे इशू को लेकर हम बात करेंगे और सोचेंगे। मेरे क्षेत्र में रेलवे का इशू है, इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट है, ये सारी बातें तो हमको करना, इरिगेशन है, करना ही है। लेकिन ये भी इशू को हम देखते हैं और इसी के लिए हम बहुत कोशिश करके हम प्रयास करते हैं कि अच्छे सांसद बनने से बजाय सांसद की चेयर की गरिमा कैसे बढ़ेगी, ये प्रयास हम करते हैं। लोकतंत्र की गरिमा कैसे बढ़ेगी, ये प्रयास करते हैं। धन्यवाद। Very briefly, thank all the organizers, thank especially the Governor, T.S. Krishnamurthy Malaysia. I will not talk much about me because humility prevents me from accepting the praises which have been showered on me. But almost the nation and the speaker formally also have told me that I am a role model here. And I always consider discussing only the national issues and not the issues pertaining to my constituency. I always move well with my fellow parliamentarians, which perhaps could be a reason why I am liked by my fellow parliamentarians, my fellow colleagues in parliament and other places. And the speaker was raising the issue of coal allocation. Coal allocation, what I basically found was only on the question of irregularities in the allotment of coal. Coal India Limited is a very big public sector undertaking employing around 3.6 lakhs manpower. And CAG, Supreme Court of India, and CBI, everybody have observed that there have been irregularities in the coal allocation. I am not against the system, I am not against the procedures, but there have been irregularities in the implementation of all these rules.
So the corruption charges are not much against basically the system in place, but only against the implementation aspects. Then coming to my performance in the parliament, I always take up issues concerning our constituency up to 49%, that is less than 50%. And issues concerning our nation will be always 51% or more. And I always consider that unemployment, agricultural lopsided growth have been major concerns in an agri-oriented country like India. I am not talking against the government. I am not faulting the government on every issue, but basically, fundamentally, I am convinced that unemployment certainly does prevail. India is always considered to be the country of youth, but I wonder, I am deeply concerned that India also is now considered to be a country of unemployed youth, which causes concern. Poverty, malnutrition are major concerns, major problems. And added to it is also the question of hunger in India. And regarding the neighbors, Bangladesh and Sri Lanka, they have been neighbors who cause concern. I am pained that our government at the center is not able to raise against the atrocities committed against our own fellow Tamils in a neighboring country like Sri Lanka. Why? So there are issues which still cause concern, wherein I still want to perform much better.